بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، عید الفطر کے دن صبح کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں عید کی خوبیاں اور قاعدے بیان کر رہے تھے۔ وہاں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ تمام صحابہ اکرام خوش ہیں کہ ابھی اللہ رب العزت سے عیدگاہ سے تحفے وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جائیں گے۔ عید کی خوبیاں اور قاعدے سننے کے بعد تمام صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ وہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں طے کیے گئے وقت پر آ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگوائی میں عیدگاہ کی طرف چلیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہاں حسنین کریمین نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی ماتھے پر بوسہ دیا اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بٹھا دیا اور پھر فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے زیبتن کیے یعنی پہنے اور خوشبو لگائے۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین شہیدین مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ لوگوں کی یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگوائی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر کے کنکڑ اور پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیل میں مگن تھے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ آدر اور سمان سے بھرے ہوئے انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پاک زمین کی یہ نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی رونے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد اور نرمی کے ساتھ رو رہا تھا جس کا اندازہ یتیمے کے ماحول میں پلے ہوئے انسان ہی کو ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے۔ جو ہی بچوں کے کہے کو سنتا ہے اپنی درد بھری آواز اور تیز کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف چہرہ کیا تو کائنات کا چہرہ بدل گیا۔ حسن و حسین صحابہ پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈر گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ کا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلے احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لختے جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اسے کتنا اچھا لگتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، اب بھی دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے؟ اسے محسوس ہوا جیسے وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا ہو اور اس کے باپ کی روح سے باتیں کر رہا ہو۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو اپنے کندھے مبارک پر سوار کیا۔ اپنی کندھائے مبارک پر جہاں چند منٹ پہلے حسن و حسین چاند کے ٹکڑے بیٹھے ہوئے تھے، اب ایک یتیم لاوارث بےکس معصوم اور میلے کپڑوں میں 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم بچے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم بچے نے پھر حیرانگی سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ میرے ابا ہیں؟
और आप क्यों रो रहे हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि तुमको पता नहीं कि तुम कितनी देर से रोते रहे हो। यतीम बच्चे ने कहा कि मुझे तो एहसास ही नहीं कि मैं रो रहा हूँ। अब नवासे पैदल चल रहे हैं, यतीम बच्चा कंधों पर सवार था। प्यारे दोस्तों, फिर आपको पता है वो कहाँ गए? ईदगाह की तरफ? नहीं, उसे तो इतनी देर कंधों पर सवार रहना था जितनी देर हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। वक्त की घड़ियां तुम अपनी रफ्तार मध्यम कर लो, निजाम कायनात तुम रुक जाओ, सूरज तुम अपनी रफ्तार नर्म कर लो। जब उस यतीम की ईद ना होगी तो पैगंबर की भी ईद ना होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचानक खुशी भरे पल के आने पर हैरान हो जाती है और वजह पूछती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम औलाद से तड़पती थी ना, आज खुदा ने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। यतीम बच्चे को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बेटा है। और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अहलन व सहलन मरहबा या नबी कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा है। इसकी कोई माँ नहीं, तू इसकी माँ है। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नहलाने में बिजी हैं। इतने में हजरत फातिमा तु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी, मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोती थी। आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहला रहे हैं ताकि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे साथ ईद की नमाज पढ़ने जाएं। फातिमा अहलन व सहलन मरहबा या नबी कहकर पानी लेने चली जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगी मैल उतार रहे हैं। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही हैं। हसनैन अपने कपड़ों में भाई के लिए अच्छे से अच्छे जोड़े चुन रहे हैं। गोया घर का हर शख्स हकीकत तौर पर इस यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। और प्यारे दोस्तों, जब वो बच्चा खुशी खुशहाल बाहर निकला तो लड़कों ने पूछा, अभी तो तू रो रहा था और अब बड़ा खुश हो रहा है, क्या बात हुई है? वो कहने लगा, मैं भूखा था, अल्लाह ताला ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ताला ने मेरे कपड़े का इंतजाम कर दिया। और अब मेरे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ सैयदा आयशा, बहन सैयदा फातिमा तु ज़हरा, चचा सैयदना अली और भाई हसन हुसैन बन चुके हैं। ये सुनकर लड़के कहने लगे, काश आज हमारे बाप भी ना होते। प्यारे दोस्तों, ये लड़का हमेशा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख रेख में रहा। यहाँ तक कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो ये बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफसोस आज फिर यतीम और गरीब हो गया। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको अपने साथ मिला लिया, क्योंकि प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीमों के बहुत हुकूक बयान किए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी यतीम की देख रेख करेगा और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में उतना ही नेकियां लिख देगा। हमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए ताकि उनकी भी ईद हो जाए और हमें कल रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है
जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों का सबसे बदतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। एक शख्स ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त है, इसका इलाज क्या है? फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे के खाने की जिम्मेदारी ली तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत मारूफ अल-करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ईद के दिन नखलिस्तान में गिरी पड़ी खजूरें चुन रहे थे। ये देखकर एक शख्स ने पूछा, हुजूर, खजूरें किस लिए चुन रहे हैं? फरमाया, मैंने एक लड़के को रोते हुए देखा। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, मैं यतीम हूँ। ये लड़के अखरोटों से खेल रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अखरोट खरीद कर इनके साथ खेल सकूं। इसीलिए मैं खजूरें चुन रहा हूँ ताकि उन्हें बेचकर इस यतीम बच्चे को अखरोट ले दूं। प्यारे दोस्तों, ये तमाम अहादीसें वगैरह यतीम की देख रेख के सिलसिले में तरगीब व फजाइल की है। ताहम इनसे ये बात ज़रूर समझ में आती है कि इस तरह के नादार लवारिस और यतीम बच्चों की देख रेख मुसलमानों के जिम्मे है। सहूलत के हिसाब से इलाके और मोहल्ले के लोगों पर यह जिम्मेदारी आती है कि इन बच्चों को यूं ही बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ लोग इस जिम्मेदारी को बतौर किफाया निभा लेते हैं तो सब बरीओ जिम्मा हो जाएंगे, वरना सब के सब गुनहगार होंगे। बस आखिर में ये कहूँगा कि हम में से हर एक को चाहिए कि अपनी हैसियत के हिसाब से गरीबों और यतीमों को भी ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ईद असल में दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करने का नाम है या दूसरों की खुशियों में शामिल होने का नाम है। अगर हमारे पड़ोस में, रिश्तेदारी में, फैमिली में और मोहल्ले में और इलाके में कोई फैमिली गरीबों की वजह से ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो पाती है तो इसकी भरपूर मदद करके उसको भी ईद की खुशियों में शामिल किया जाना चाहिए। किसी गरीब की मदद और खिदमत करने से जो रूहानी खुशी हासिल होती है वो कभी ना ख़त्म होने वाली होती है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।